So, students, today we will discuss the two topics, mass fraction and mole fractions. These are the last topics of concentration, means these are the last way to calculate the concentration of solution. First of all, I will discuss the mass fraction. What is mass fraction? Just see one thing. Suppose I am having two components, A and B, present in the solution. So, the mass fraction of A, it is the ratio of mass of A upon total mass of all the components present in the solution. Similarly, if I have to calculate mass fraction of B, then this will be equal to mass of B divided by mass of A plus mass of B. So in the short, what will I say? Mass fraction is the ratio of mass of component to the total mass of all the components, to the total mass of all the components. I think it is clear to all of you. In the short, if I discuss again, mass of what is a mass of fraction? It is a mass of a particular component जिसका आपको निकालना है, उसका mass है divided by the total mass of all the components. And be clear, just like the sum of percentage is 100, so the sum of fraction is always 1. Means mass fraction of A plus mass fraction of B is equal to 1. As far as units are concerned, there are no units because we well know that ratio does not have any unit. So we'll discuss one question based on that. I am having 20% aqueous NaOH solution. Calculate mass fraction of all the components. Just see out. 20% aqueous NaOH solution means beta, I am having 20 gram of NaOH dissolved in 100 gram of solution. Means I want to say that mass of NaOH is 20 gram, whereas due to aqueous solution जो आपका second component है that is water. And how can we calculate the mass of water? Just see, the total mass is 100, out of which the 20 is NaOH, so 100 minus 20, the left out 80 gram is the mass of water. So mass fraction of NaOH, this is equal to mass of NaOH divided by mass of NaOH plus mass of water. Just simply I'll put it out. Mass of NaOH कितना है बेटा? This is 20 upon mass of NaOH 20 plus mass of water 80. This will be 20 upon 100, comes out to be 0.2. Understand? Now similarly we can calculate the mass fraction of water also, but as I have told you that sum of mass fraction is always 1. So I simply calculate by using this, that mass fraction of NaOH plus mass fraction of water, beta इसका sum 1 है. From here I will calculate mass fraction of water. This comes out to be 1 minus mass fraction of NaOH. So 1 minus 0.2. This comes out to be 0.8. So this is another method to calculate the mass fraction simply. What you have to do, आपको simple उसको 1 में से subtract करना है. So I think the concept of mass fraction is clear to all of you. It is a small concept. आज के lecture का जो main concept है, that is the second one, mole fraction. The main concept of today's lecture is, so what is mole fraction? Just see out. Mole fraction. The symbol of mole fraction is x. So just like बेटा मैंने आपको कहा था mass fraction क्या है? Ratio of mass of component to the total number of mass of all the components. If in place of mass अगर हम number of moles लेके चलेंगे तो वो क्या आएगा आपका? Mole fraction. So what is mole fraction? It is the ratio of moles of a component to the total moles of all the components. सभी components के मोल का क्या करना है आपको? टोटल करना है. For example, अगर मैं आपसे कहूँ I am having a solution containing NaOH and water. There are two components. So mole fraction of NaOH ये किसके इक्वल होगा बेटा? Number of moles of NaOH divided by number of moles of NaOH plus number of moles of water. Similarly, we can calculate mole fraction of water. This will be equal to
number of moles of water upon number of moles of water plus number of moles of NaOH. And just like हमने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था that sum of mass fraction is 1, similarly the sum of mole fraction x NaOH plus x water, this is also equal to 1. And as far as units are concerned, since this is a ratio, so it does not have any unit. So what is mole fraction? I think clear to all of you. It is a ratio of moles of particular component to the total moles of other component, having technically no units in this. चलिए अब इसके न्यूमेरिकल करने से पहले हम दो फॉर्मूले और डिस्कस करेंगे. देखिए एक रिलेशन है बिटवीन मोल फ्रैक्शन मोलैरिटी. व्हाट इज, या एक चीज मैं आपसे कहूं, हमने भी मोल फ्रैक्शन निकाला, हम इसको सिंपली न्यूमेरिकल से करेंगे, बट कुछ बड़ी टर्म्स है जिनके साथ भी हमें मोल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए मैं एक तरीका आपको सजेस्ट करता हूं कि हम दो तीन क्वांटिटीज के साथ उसके रिलेशन करेंगे, बाकी के साथ हम उसके रिलेशंस नहीं करेंगे. जस्ट लाइक सी आउट, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन into 1000 xb. xb stands for मोल फ्रैक्शन किसका बेटा, ये सॉल्यूट का, अपॉन xa into ma. just see out the relation number 1. molarity is equal to 1000 into xb upon xa into ma. This is the relation between the molarity and the mole fraction of solute. Similarly, if I will take molarity here, then what will I do? Same xb, same 1000, only one thing will come, that is density, and in the denominator side xama plus xbmb. These are the two main relations between the molarity and mole fraction of solute. एक चीज का और ध्यान रखिएगा बेटा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू टोटल कितना जाएगा, बन जाएगा. अगर आपको x से पता है तो xb भी पता है, और रिवर्स अगर मैं करूं xb पता है तो x ये भी पता है. तो ये दोनों फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हम रोल प्ले करेंगे न्यूमेरिकल्स में. अगर इसके अलावा कोई भी चीज हमें निकालनी है तो हम उनको इनसे रिलेट करेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं परसेंटेज बाय मास आपको कैलकुलेट करना है यूजिंग मोलैरिटी, ध्यान दीजिए, यूजिंग, या इसको थोड़ा गाइड करते हैं, यूजिंग मोल फ्रैक्शन आपको क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज बाय मास. मैंने आपको इसकी जो मोल फ्रैक्शन की रिलेशन है वो किसके साथ कराई है, मोलैरिटी और मोलैरिटी के साथ, किसी और के साथ तो नहीं कराएंगे. बट मुझे मोल फ्रैक्शन से किसको कन्वर्ट करना है, परसेंटेज बाय मास. तो पहले मोल फ्रैक्शन से बेटा मैं क्या निकालूंगा, मोलैरिटी, और फिर मोलैरिटी को किस में कन्वर्ट करूंगा, परसेंटेज बाय मास. इस चीज को बड़ा ध्यान रखना है. सपोज आई विल से आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है यूजिंग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. तो अगेन देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन. व्हाट विल आई डू, आई विल कैलकुलेट फर्स्ट मोलैरिटी and then molarity is converted into normality. Again one more, if I say you have to calculate strength from mole fraction, there is no direct relation, but we know that there is a relation between mole fraction and molarity, and I will convert molarity into strength. This is clear. ये आपको थोड़ा सा चीज याद करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे पास फॉर्मूले बहुत ज्यादा हो जाएंगे. तो बिफोर आई गो इनटू द न्यूमेरिकल पार्ट, देखते हैं क्या मेन फॉर्मूले हैं. पहला फॉर्मूला, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स. दूसरा, मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000 into xb अपॉन xa into ma, whereas with molarity xb into 1000 के ऊपर एक डेंसिटी ज्यादा आएगा, टुवर्ड द डिनोमिनेटर xb and mb ज्यादा आएगा. एंड बी क्लियर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विल बी 1. चलिए नाउ सी विल डू सम न्यूमेरिकल्स ऑन दिस. देखिए बेटा, सो अगेन सिंपल, फर्स्ट क्वेश्चन, calculate mole fraction of each component in 20% aqueous NaOH solution. आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है सभी कंपोनेंट का 20% aqueous NaOH solution में. चलिए 20% aqueous NaOH solution means बेटा 20% NaOH means 20 ग्राम NaOH in 100 ग्राम solution. तो इसमें से बेटा जो मास ऑफ NaOH आया वो कितना आ गया, 20. अब वाटर का बताइए कितना आएगा, एक्वस मींस वाटर, वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो 100 में से बेटा अगर मैं 20 माइनस करूंगा तो वाटर कितना आएगा, 80 ग्राम. नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, फॉर्मूला इज मास अपॉन मोलर मास. NaOH का मास कितना है बेटा, 20, मोलर मास 40. कितने मोल्स आए आपके, 0.5 मोल्स आ गए आपके. अंडरस्टैंड नाउ. चलिए सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर कितने ग्राम है बेटा, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, मास अपॉन
मोलर मास, वाटर कितने ग्राम है 80, मोलर मास 18, कट कीजिए, 80 का हाफ 40, इसका हाफ 9, और कट हो सकता है नहीं हो सकता, डायरेक्टली अगर हम इसको डिवाइड करें दिस कम्स आउट टू बी 4.44 मोल्स। वैसे भी चेक कीजिए, 9 4 36, दैट कम्स आउट टू बी। तो मोल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स। चलिए अब मोल फ्रैक्शन निकालते हैं बेटा NaOH का। NaOH का मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। सिमिलरली बेटा वाटर का फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। पुट द वैल्यूज। NaOH के मोल्स कितने बेटा 0.5, डिनोमिनेटर में 0.5 प्लस 4.44, तो 4.44 में अगर आप 0.5 ऐड करोगे इट विल बी 0.5 अपॉन, बेटा इसमें ऐड करना है 4.94, कितना हो जाएगा 0.5 अपॉन 4.94, एंड दिस कम्स आउट टू बी 0.101। न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन बड़ा ध्यान से करना है आपको, बी क्लियर। मेरे पास तो डायरेक्ट कैलकुलेशंस है बट यू हैव टू डू योर कैलकुलेशंस ओन। चलिए अब इसका निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। वाटर के कितने मोल्स हैं बेटा 4.44, नीचे NaOH के मोल्स कितने हैं आपके, फिर से देखिए NaOH के मोल्स 0.5 और वाटर के मोल्स 4.44, सो 4.44 डिवाइडेड बाय 4.94, दिस कम्स आउट टू बी 0.89। अब इसको निकालने का एक मेथड और है मेरे पास। आई नो दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना है बेटा 1 है, तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, तो 1 माइनस 0.101 comes out to be 0.89। So I think question number 1 is clear to all of you now। ठीक है, चलिए now we'll do question number 2 now। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको मुझे सिर्फ वहां तक लेके जाना है कि मोल फ्रैक्शन में मोल्स कैसे आएंगे, बाकी चीज आप खुद कैलकुलेट करो। क्वेश्चन नंबर 2, a solution contains 40% of NaOH, 36% water plus 24% of CaCO3। You have to calculate the mole fraction of each component। तो बेटा 40% का मतलब आपका NaOH कितना हो गया 40 ग्राम, वाटर विल बी 36 ग्राम, और जो आपका CaCO3 है वो कितना हो गया 24 ग्राम। इनके मोल्स बनाइए, 40 अपॉन 40, 36 अपॉन 18 एंड 24 अपॉन 100, यही से मोल्स आ जाएंगे आपके। दीज मोल्स कम्स आउट टू बी दिस कम्स आउट टू बी वेरी सिंपल, 40/40 बेटा ये 1 मोल आ गया, ये आ गया आपका 2 मोल, और ये कितना आएगा 0.24 मोल। अब आपके पास अगर मोल्स आ गए आई थिंक आप इजीली मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। चलिए मैं एक निकाल कर दिखाता हूं। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH नाउ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ca। वैल्यू पुट कीजिए, NaOH के मोल्स है 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 0.24, दिस इज 1 अपॉन 3.24, दिस कम्स आउट टू बी 0.308। सिमिलरली अपने आप कैलकुलेट करना, यू आर एबल टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड सिमिलरली यू आर एबल टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ CaCO3। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये तो अब तक परसेंटेज में बात कर रहे थे, अब किसी और कंसेप्ट में बात करते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 6.022 10 की पावर 23 molecules of NaOH and 6.022 into 10 की पावर 23 molecules of water। एक सॉल्यूशन है बेटा जिसमें NaOH और वाटर के मॉलिक्यूल्स आपको गिवन है, और आपको दोनों ही का क्या कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन। तो देखिए मोल्स तो अब भी गिवन नहीं है, मुझे पहले क्या कैलकुलेट करने पड़ेंगे मोल्स। मॉलिक्यूल्स मेरे को गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, मॉलिक्यूल्स अपॉन में 6.022 10 रेज टू द पावर 23। इस तरीके से हम दोनों के मोल्स निकालेंगे। चलिए चेक करते हैं। तो NaOH के मॉलिक्यूल्स कितने हैं 6.022 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय
6.022 10 की पावर 23, 1 मोल आ गया बेटा। सिमिलरली वाटर के भी मॉलिक्यूल्स कितने दे रखे हैं, they have given 6.022 10 raised to the power 23 divided by 6.022 10 की पावर 23 again comes out to be 1 mole। तो दोनों की क्वांटिटी क्या आ गई है, सेम आ गई है। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या आएगा बेटा, ये NaOH के मोल्स देखो 1 और टोटल मोल्स 1 प्लस 1 1/2 कितना आ गया बेटा 0.5। अब मैं वाटर के मोल कैसे निकाल सकता हूं, 1 में से माइनस करके, तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH दैट इज 1 माइनस 0.5 कितना आ गया बेटा ये 0.5। तो ये टाइप 1 मैंने आपको बताया। चलिए इसमें तो मैं टाइप को डिस्कस नहीं करता हूं, बट इसमें आपने क्या निकाला, सिंपल आपने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किया है। अब हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन एंड अदर कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशन को स्टडी करेंगे, मोल फ्रैक्शन एंड अदर कंपोनेंट्स। इसमें एक ही क्वेश्चन हम करेंगे काफी डिटेल के अंदर। क्वेश्चन आई विल टेल यू, द क्वेश्चन इज सेड टू बी कैलकुलेट द मोलैरिटी नॉर्मेलिटी परसेंटेज बाय मास स्ट्रेंथ परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ, मोलैरिटी भी ले लेते हैं या मोलैरिटी रहने देते हैं कोई बात नहीं, ऑफ अ सॉल्यूशन containing 0.2 mole fraction of solute having density 2 gram per ml and the solution is aqueous NaOH solution। सी और बेटा एक बार इस क्वेश्चन को पहले देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सेज आपको मोलैरिटी नॉर्मेलिटी परसेंटेज बाय मास स्ट्रेंथ ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू कैलकुलेट इन अ सॉल्यूशन हैविंग द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 0.2 और उस सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको गिवन है, द सॉल्यूशन इज ऑफ एक्वस NaOH सॉल्यूशन। चाहो तो मोलैरिटी भी निकाल लो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो मेरे को गिवन क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मींस XB कितना है बेटा मेरा 0.2 और सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है 2 ग्राम पर ml और NaOH का सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन है एक्वस। एक्वस मींस NaOH में मैंने क्या ऐड कर रखा है बेटा, वाटर ऐड किया हुआ है। चलिए काम करते हैं, पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू XB अपॉन XA इंटू MA। हाँ जी, तो पुट कीजिए बेटा 1000 इंटू XB कितना गिवन है 0.2, XA कितना हो जाएगा, देखिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे। वी नो दैट XA प्लस XB की वैल्यू कितनी है 1, तो XA क्या होगा बेटा 1 माइनस XB दैट इज 1 माइनस 0.2 कितना आ गया 0.8, यहां पुट कीजिए 0.8 मल्टीप्लाई MA मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मेरा वाटर और वाटर का मोलर मास कितना होता है 80। अब इसकी वैल्यू आप खुद कैलकुलेट करेंगे जो भी आएगी आपकी। चलिए नेक्स्ट, मोलैरिटी फॉर्मूला इज अगेन 1000 into XB into density upon XAMA plus XBNB। now put 1000 into बेटा 0.2, डेंसिटी कितनी है 2 अपॉन में XA 0.8 into 18 आपका मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.2, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपका NaOH है कितना आएगा 40। सपोज ये आ जाता है बेटा x मोल पर लीटर। कैलकुलेशन में छोड़ रहा हूं क्योंकि काफी टाइम इसमें लगने वाला है। अब अगर आपको परसेंटेज बाय मास निकालनी है तो क्या करेंगे, रिलेशन मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज बाय मास इनटू डेंसिटी अपॉन MB। पुट कर लेंगे यहाँ पे परसेंटेज मोलैरिटी पुट करके क्या निकालोगे परसेंटेज बाय मास। सपोज नॉर्मेलिटी निकालनी है तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। ये जो आपने मोलैरिटी निकाली इसको किससे मल्टीप्लाई करना है n फैक्टर से। सपोज आपको स्ट्रेंथ निकालना है तो वी नो दैट मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन MB। तो बेटा स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी यहां से मोलैरिटी इनटू MB। तो जो आपकी मोलैरिटी आई थी उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड इन द लास्ट परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम कैसे निकालोगे। देखो आपने यहां से क्या निकाला था परसेंटेज बाय मास, तो परसेंटेज बाय मास को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप डेंसिटी से। तो दिस इज अ कंप्लीट न्यूमेरिकल जिसमें आपने सारी चीजें कैलकुलेट करी है यूजिंग द टर्म मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। डायरेक्टली दो ही चीजें निकालनी है,
मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। फिर बाकी चीजों को आपने मोलैरिटी से निकाला या आपने मोलैरिटी से निकाला।